مولانا صاحب بطور پی ڈی ایم کے سربراہ کے آپ پہلی بار آج جاتی امراء جا رہے ہیں اور ان کے ڈیلیگیشن سے جو ہے وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف حالیہ دنوں میں جن سے آپ کی ملاقات ہے 10 افراد سے ان پر غداری کا مقدمہ قائم ہے. یہ ملک میں کیا کس نے غداری کا کیس کیا ہے؟ تھانہ شاہدرہ میں جو خود غدار ہیں، جن کے خلاف غداری کے فیصلے ہو چکے ہیں اور جو عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس میں 3 جنرل ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ، جس میں آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں. اس قسم کے ہتھ کنڈے آپ استعمال کر رہے ہیں. آپ انڈیا کے ایجنٹ نہیں بنتے. جب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف غداری کا کیس آپ کریں گے اس کا کیا میسج جائے گا؟ لہذا یہ کوئی مقدمہ نہیں ہے. ہم ایسے مقدمات کو جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں. ہم ان کا مقابلہ کریں گے. غدار وہ ہیں جنہوں نے دھاندلی کی ہے. غدار وہ ہیں جو عوام کے مینڈیٹ کے بغیر قوم پر مسلط ہیں. غدار وہ ہیں کہ جس کے خلاف فیصلے آئے اور پھر عدالتی کمیشن تحلیل کر دیے گئے. لہذا اس حوالے سے جنگ نہ چھیڑی جائے. ہم ایسے جنگ میں لڑنے کے بڑے عادی ہیں اور ہم ملک کو اس حد تک نہیں لے جانا چاہتے. ہمیشہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ انتہا تک نہ جائیں. ہم بالکل انتہا تک نہیں جا رہے. ہم آئین کے حدود کے اندر جا رہے ہیں، لیکن کوئی دوسرا ادارہ بھی آئین کے حدود سے آگے نہ جائے، انتہا پسندی کی طرف نہ جائے. اگر پیپلز پارٹی نے راستے میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور چودھری شجاعت حسین صاحب بھی آپ کے پاس نہ آئے، اس تحریک کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس اگر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا مولانا صاحب بتائیے گا، تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے گا. جو موجودہ عسکری قیادت ہے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، جو موجودہ عسکری قیادت ہے بطور پی ڈی اے کے سربراہ، آپ موجودہ عسکری قیادت کے خلاف ہیں یا ادارے کے؟ یہ آج کلیئر کرتے تاکہ قوم کو بھی سمجھ آ جائے کہ معاملہ خراب ہوا کہاں ہے. اور عمران خان تو ایک معنی نہیں رکھتے بطور نواز شریف. ذرا کلیئر کرتا. یہ بات تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح واضح ہے، لیکن سوال ختم ہو گیا. اگلا سوال یہ فرمائیے گا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم میں جتنی جماعتیں ہیں ہمیں ان سے خوف نہیں ہے، ملک میں نہ تبدیلی آئے گی نہ حکومت جائے گی. اس کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے. مولانا صاحب اور نواز شریف یہ دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں ان کے قائدین ہیں. آصف زرداری اور نواز شریف کی جو کمی ہے وہ کتنی محسوس ہوگی اور اس حوالے سے آپ اس کو سوچ بچار کی ہے کہ ان کی جو پارٹی، ہم ان کی قیادت کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ جس مشکل میں بھی ہیں انشاءاللہ سڑکوں پر عوام میں ہم آپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ نواز شریف نے کہا کہ مجھ سے ڈی جی آئی ایس آئی نے استعفیٰ مانگا تھا، وہی سوال عمران خان سے کیا گیا اگر آپ سے استعفیٰ مانگتے تو آپ کیا کرنا کہ میں تو اسے فارغ کر دیتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو بھی اس وقت کوئی اس طرح بولڈ اسٹیپ لینا چاہیے تھا؟ میرے خیال میں مجھے چونکہ ان حکومتی امور و معاملات سے نہ تو کوئی وابستگی رہی ہے، انہوں نے جو بات کی ہے جن سے متعلق ہے وہ خود اس کی وضاحت کریں. اچھا مولانا صاحب بتائیے گا، جن سے پہلے دھرنا آپ نے اسلام آباد کے اندر دیا اور آپ کو مختلف قسم کے لالی پاپ دے کے وہاں سے اٹھا دیا گیا، کیا اس طرح کے آپ کو امکانات ہیں؟ ہمارے پلاننگ میں ہے کہ ہم اسلام آباد جائیں گے انشاءاللہ. آپ عدنان ملک صاحب، حکومت جائے گی یا نہیں جائے گی؟ ایک سیکنڈ. تمام اپوزیشن کی اور عوام کی نظریں آپ پر ہیں، تو آپ کے اوپر حکومت کی جانب سے جو ایک کیس بھی نیا میں بنا دیا گیا، کیا آپ نے عمران خان کو کوئی پلاٹ وہ وقت سے پہلے جائیداد کہاں لے کے وہ وقت سے پہلے ہم نے اڑا دیا ہے. عدنان ملک صاحب یہ حکومت نومبر میں جا رہی ہے، دسمبر میں جا رہی ہے؟ ایک سیکنڈ جی، ترتیب سے. تو ہمیشہ دیے جاتے ہیں. عدنان ملک صاحب غیرت مند لوگ استعفے دیتے ہیں اور کمزور لوگوں سے استعفے لیے جاتے ہیں. ایک سیکنڈ جی، عدنان صاحب. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ مومن ایک سراغ سے دوسری دفعہ نہیں ڈسنا چاہتا، تو آپ پھر ان کے جھانسے میں آ گئے. ٹرائی اگین. حکومت نومبر میں جا رہی ہے، دسمبر میں جا رہی ہے؟ آج یہاں پر جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کی جنرل کونسل کا اجلاس تھا. تمام نمائندے آئے ہوئے تھے اور ایک بھرپور عزم کے ساتھ فیصلہ کیا گیا کہ 16 اکتوبر کو جو پہلا جلسہ گوجرانوالہ میں ہوگا اس کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے گی. پبلک میں آگاہی پیدا کی جائے گی اور ایک عوامی قوت کا مظاہرہ ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس ملک کی حفاظت،
इस मुल्क की माशी तरक्की, इस मुल्क में आवाम की खुशहाली, ये एक ऐसा हमारा हदफ है कि इन हालात में जब मौजूदा हुकूमत नाजायज़ भी हो, नाअहल और नालायक भी हो और अवाम एक कर्ब में मुब्तला हों, न इसे अवाम की नुमाइंदा हुकूमत कहा जा सकता है और न ही अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकी है। महंगाई ने आम आदमी और गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। आज भी इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजिमीन का बहुत बड़ा मुजाहरा है जो कल से जारी है और आज उन पर तशद्दुद भी किया गया है, जिसके हम भरपूर अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं और हम उनके मुतालबात की भरपूर हिमायत भी करते हैं। तो इस एतबार से अब ये कारवान चल पड़ा है, आज़ादी का कारवान है, मुल्क में आइन की बालादस्ती का कारवान है, अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत के क़याम के लिए एक सफ़र का आगाज़ कौमी सतह पर किया जा रहा है, जिसमें तमाम सियासी जमातों की आला क़यादत शरीक होगी और मुत्तहिदा हमारे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से, PDM की तरफ से पूरे मुल्क में जलसों, मुजाहरों और इज़्तिमाअत इज्तिमाअत का एक सिलसिला शुरू किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह मैं तो समझता हूँ कि पहले ही 2-3 जलसों में मुल्क के अंदर एक तब्दीली के एहसासात और असरात पैदा हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह इसके लिए हमने भरपूर फ़ैसला किया है और पूरे सूबे की जमात, पूरे मुल्क की जमातें और अवाम इन जलसों की कामयाबी के लिए मुंतज़र है। मौलाना साहब, PDM के ये बताइएगा कि आप डे फर्स्ट से पहले दिन से 25 जुलाई से इस पार्लियामेंट के खिलाफ थे कि ये आवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है। आप क्या समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब अपनी 2 तकरीरों के बाद उस हद तक नज़रियाती हो चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त आमने सामने को तैयार है? और इसी के साथ दूसरा सवाल ये कि किस हद तक आपको ये मैंडेट दिया है तमाम जमातों ने कि अगर किसी सतह पर इस्तीफा देने का मामला आए तो PDM इसी तरह यूनाइटेड होकर इकट्ठा जाएगा? देखिए, एक तो बुनियादी बात यह है कि ये तासुर बिल्कुल गलत है कि सियासी लोग, पार्लिमानी और जमहूरी लोग वो इदारों से तसादुम की बात करते हैं। इदारों से तसादुम का कोई तसव्वुर नहीं है। हम इदारों के इस्तेहकाम के कायल हैं, लेकिन आइन के तहत दिए हुए दायरे कार के तहत अपने किरदार को महदूद करने की बात करते हैं। लिहाजा अगर कोई इदारा अपने हदूद से तजावुज़ करता है और मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होता है तो ये ख़ुद उनके हल्फ की भी मुखालफत है, उनके अपने इदारे की कमज़ोरी का सबब भी बनता है और फिर ज़ाहिर है जिसके साथ पाकिस्तान का दिफा वाबस्ता हो वो तो हर शहरी के लिए एक हसास इदारा बन जाता है। तो इस एतबार से जो शिकायतें सामने आई हैं वो शिकायतें जेन्युइन हैं और उसको हमें बाकायदा दलील की बुनियाद पर ठंडे दिल के साथ सोचना चाहिए कि मुल्क कैसे चल सकता है। और जहाँ तक इस्तीफ़ों की बात है, ये हमारे मुत्तफ़िक़ा जो ऑप्शंस हैं उसका हिस्सा है और आने वाले वक्त में इसको इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकेगा। हमें बिल आखिर इन ऐवानों के बारे में एक कतई फैसले की तरफ जाना होगा। मौलाना साहब, बतौर PDM के सरबराह के आप पहली बार आज जाती उमराह जा रहे हैं और उनके डेलीगेशन से जो है वो मुलाकात करने जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ हालिया दिनों में 10 जिनसे आपकी मुलाकात है 10 अफराद से उन पर गद्दारी का मुकदमा कायम है। ये मुल्क में क्या हो, किसने गद्दारी का केस किया है? थाना शादरा में जो खुद गद्दार हैं, जिनके खिलाफ गद्दारी के फैसले हो चुके हैं और जो अदालतों में पेश होने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसमें 3 जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, जिसमें आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं। इस किस्म के हथकंडे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इंडिया के एजेंट नहीं बनते। जब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ गद्दारी का केस आप करेंगे उसका क्या मैसेज जाएगा? लिहाजा ये कोई मुकदमा नहीं है। हम ऐसे मुकदमात को जूते के नोक पर रखते हैं। हम इनका मुकाबला करेंगे। गद्दार वो हैं जिन्होंने धांधली की है,
गद्दार वो हैं जो अवाम के मैंडेट के बगैर कौम पर मुसल्लत हैं। गद्दार वो हैं कि जिसके खिलाफ फैसले आए और फिर अदालती कमीशन तहलील कर दिए गए। लिहाजा इस हवाले से जंग न छेड़ी जाए। हम ऐसे जंग में लड़ने के बड़े आदी हैं और हम मुल्क को इस हद तक नहीं ले जाना चाहते। हमेशा हमें कहा जाता है कि जी आप इंतहा तक न जाएं। हम बिल्कुल इंतहा तक नहीं जा रहे, हम आइन के हुदूद के अंदर जा रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा इदारा भी आइन के हुदूद से आगे न जाए, इंतहा पसंदी की तरफ न जाए। अगर पीपल्स पार्टी ने रास्ते में आपका साथ छोड़ दिया और चौधरी शुजात हुसैन साहब भी आपके पास ना आए तो इस तरीके का मुस्तकबिल क्या होगा? इस अगर की कोई हैसियत नहीं है। अच्छा मौलाना साहब बताइएगा, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा, जो मौजूदा अस्करी क़यादत है, मैं रिपीट कर देता हूँ, जो मौजूदा अस्करी क़यादत है बतौर PDA के सरबरा, आप मौजूदा अस्करी क़यादत के खिलाफ हैं या अदारे के? ये आज क्लियर कर दें ताकि कौम को भी समझ आ जाए कि मामला ख़राब हुआ कहाँ है। और इमरान खान तो एक मायने नहीं रखते बतौर नवाज शरीफ, ज़रा क्लियर कर। ये बात तो जिस तरह आप कह रहे हैं उसी तरह वाज़ेह है, लेकिन सवाल खत्म हो गए, अगला सवाल। ये फरमाइएगा कि इमरान खान ने कहा है कि PDM में जितनी जमातें हैं हमें उनसे खौफ नहीं है, मुल्क में ना तब्दीली आएगी ना हुकूमत जाएगी। उसके पसीने छूटे हुए हैं, आपको पता नहीं है। और नवाज शरीफ, ये दोनों जो बड़ी जमातें हैं उनके कायदीन हैं, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की जो कमी है वो कितनी महसूस होगी? और इस हवाले से आपको सोच विचार की है कि उनकी जो पार्टी, हम उनकी क़यादत को पैगाम देना चाहते हैं कि आप जिस मुश्किल में भी हैं, इंशाअल्लाह सड़कों पर अवाम में हम आपकी कमी महसूस नहीं होने देंगे। मौलाना साहब ये बताइएगा कि नवाज शरीफ ने कहा कि मुझसे DGISI ने इस्तीफा मांगा था, वही सवाल इमरान खान से किया गया, अगर आपसे इस्तीफा मांगते तो आपके अकड़ में मैं तो उसे फारग कर देता। क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ को भी उस वक्त कोई इस तरह बोल्ड स्टेप लेना चाहिए था? मेरे ख्याल में मुझे चूँकि इन हुकूमती उमूर और मामलात से न तो कोई वाबस्तगी रही है, उन्होंने जो बात की है जिनसे मुताल्लिक है वो खुद उसकी वजाहत करें। अच्छा मौलाना साहब, इससे पहले धरना आपने इस्लामाबाद के अंदर दिया और आपको मुख्तलिफ किस्म के लॉलीपॉप दे के वहाँ जो उठा दिया गया, क्या इस तरह के आपको इम्कानात हैं? हमारे प्लानिंग में है कि हम इस्लामाबाद जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा आप अदनान मलिक साहब, हुकूमत जाएगी या नहीं जाएगी? एक सेकंड। तमाम अपोजिशन की और आवाम की नज़रें आप पर हैं, तो आपके ऊपर हुकूमत की जानब से जो एक केस भी नया में बना दिया गया, क्या आपने इमरान खान को कोई प्लाट वो वक्त से पहले जायदाद कहाँ लेके वो वक्त से पहले हमने उड़ा दिया है। अदनान मलिक साहब, ये सुन। हुकूमत नवंबर में जा रही है, दिसंबर में जा रही है? एक सेकंड जी, तरतीब से। इस्तीफे तो हमेशा दिए जाते हैं। अदनान मलिक साहब, गैरतमंद लोग इस्तीफे देते हैं और कमजोर लोगों से इस्तीफे लिए जाते हैं। एक सेकंड जी, अदनान मौलाना साहब, ट्राई अगेन। हुकूमत नवंबर में जा रही है, दिसंबर में जा रही है? आज यहाँ पर जमीयत उलमाए इस्लाम सूबा पंजाब की जनरल कौंसिल का इजलास था। तमाम नुमाइंदे आए हुए थे और एक भरपूर आज़म के साथ फैसला किया गया कि 16 अक्टूबर को जो पहला जलसा गुजरावाना में होगा उसको कामयाब बनाने के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी, पब्लिक में आगाही पैदा की जाएगी और एक अवामी क़ुव्वत का मुजाहरा होगा। क्योंकि ज़ाहिर है कि इस मुल्क की हिफाजत, इस मुल्क की माशी तरक्की, इस मुल्क में आवाम की खुशहाली, ये एक ऐसा हमारा हदफ है कि इन हालात में जब मौजूदा हुकूमत नाजायज़ भी हो, नाअहल और नालायक भी हो और अवाम एक कर्ब में मुब्तला हों, न इसे अवाम की नुमाइंदा हुकूमत कहा जा सकता है और न ही अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकी है। महंगाई ने आम आदमी और गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। आज भी इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजिमीन का बहुत बड़ा मुजाहरा है जो कल से जारी है और आज उन पर तशद्दुद भी किया गया है।
जिसकी हम भरपूर अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं और हम उनके मुतालबात की भरपूर हिमायत भी करते हैं। तो इस एतबार से अब ये कारवान चल पड़ा है, आज़ादी का कारवान है, मुल्क में आइन की बालादस्ती का कारवान है, अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत के क़याम के लिए एक सफ़र का आगाज़ कौमी सतह पर किया जा रहा है, जिसमें तमाम सियासी जमातों की आला क़यादत शरीक होगी और मुत्तहिदा हमारे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से, PDM की तरफ से पूरे मुल्क में जलसों, मुजाहिरों और अज़ीमुश्शान इज्तिमाआत का एक सिलसिला शुरू किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह मैं तो समझता हूँ कि पहले ही 2-3 जलसों में मुल्क के अंदर एक तब्दीली के एहसासात और असरात पैदा हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह इसके लिए हमने भरपूर फ़ैसला किया है और पूरे सूबे की जमात, पूरे मुल्क की जमातें और अवाम इन जलसों की कामयाबी के लिए मुंतज़र है। मौलाना साहब PDM के ये बताइएगा कि आप डे फर्स्ट से पहले दिन से 25 जुलाई से इस पार्लियामेंट के खिलाफ थे कि ये आवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है। आप क्या समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब अपनी 2 तकरीरों के बाद उस हद तक नज़रियाती हो चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त आमने सामने को तैयार है? और इसी के साथ दूसरा सवाल ये कि किस हद तक आपको ये मैंडेट दिया है तमाम जमातों ने कि अगर किसी सतह पर इस्तीफे देने का मामला आए तो PDM इसी तरह यूनाइटेड होकर इकट्ठा जाएगा? देखिए, एक तो बुनियादी बात यह है कि ये तासुर बिल्कुल गलत है कि सियासी लोग, पार्लिमानी और जमहूरी लोग वो इदारों से तसादुम की बात करते हैं। इदारों से तसादुम का कोई तसव्वुर नहीं है। हम इदारों के इस्तेहकाम के कायल हैं, लेकिन आइन के तहत दिए हुए दायरे कार के तहत अपने किरदार को महदूद करने की बात करते हैं। लिहाजा अगर कोई इदारा अपने हदूद से तजावुज़ करता है और मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होता है तो ये ख़ुद उनके हल्फ की भी मुखालफत है, उनके अपने इदारे की कमज़ोरी का सबब भी बनता है। और फिर ज़ाहिर है जिसके साथ पाकिस्तान का दिफा वाबस्ता हो वो तो हर शहरी के लिए एक हसास इदारा बन जाता है। तो इस एतबार से जो शिकायतें सामने आई हैं वो शिकायतें जेन्युइन हैं और उसको हमें बाकायदा दलील की बुनियाद पर ठंडे दिल के साथ सोचना चाहिए कि मुल्क कैसे चल सकता है। और जहाँ तक इस्तीफ़ों की बात है, ये हमारे मुत्तफ़िक़ा जो ऑप्शंस हैं उसका हिस्सा है और आने वाले वक्त में इसको इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकेगा। हमें बिल आखिर इन ऐवानों के बारे में एक कतई फैसले की तरफ जाना होगा। मौलाना साहब, बतौर PDM के सरबराह के आप पहली बार आज जाती उमराह जा रहे हैं और उनके डेलीगेशन से जो है वो मुलाकात करने जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ हालिया दिनों में 10 जिनसे आपकी मुलाकात है 10 अफराद से उन पर गद्दारी का मुकदमा कायम है। ये मुल्क में क्या हो, किसने गद्दारी का केस किया है? थाना शादरा में लोग जो खुद गद्दार हैं, जिनके खिलाफ गद्दारी के फैसले हो चुके हैं और जो अदालतों में पेश होने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसमें 3 जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, जिसमें आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं। इस किस्म के हथकंडे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इंडिया के एजेंट नहीं बनते। जब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के खिलाफ गद्दारी का केस आप करेंगे उसका क्या मैसेज जाएगा? लिहाजा ये कोई मुकदमा नहीं है। हम ऐसे मुकदमात को जूते के नोक पर रखते हैं। हम इनका मुकाबला करेंगे। गद्दार वो हैं जिन्होंने धांधली की है, गद्दार वो हैं जो अवाम के मैंडेट के बगैर कौम पर मुसल्लत हैं, गद्दार वो हैं कि जिसके खिलाफ फैसले आए और फिर अदालती कमीशन तहलील कर दिए गए। लिहाजा इस हवाले से जंग न छेड़ी जाए। हम ऐसे जंग में लड़ने के बड़े आदी हैं और हम मुल्क को इस हद तक नहीं ले जाना चाहते। हमेशा हमें कहा जाता है कि जी आप इंतहा तक न जाएं। हम बिल्कुल इंतहा तक नहीं जा रहे। हम आइन के हुदूद के अंदर जा रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा इदारा भी आइन के हुदूद से आगे न जाए, इंतहा पसंदी की तरफ न जाए। अगर पीपल्स पार्टी ने रास्ते में आपका साथ छोड़ दिया और चौधरी शुजात हुसैन साहब भी आपके पास ना आए तो इस तरीके का मुस्तबिल क्या होगा? इस अगर की कोई हैसियत नहीं है। अच्छा मौलाना साहब बताइएगा, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। जो मौजूदा अस्करी क़यादत है, मैं रिपीट कर देता हूँ, जो मौजूदा अस्करी क़यादत है बतौर PDA के सरबराह
آپ موجودہ عسکری قیادت کے خلاف ہیں یا ادارے کے؟ یہ آج کلیئر کر دیں تاکہ قوم کو بھی سمجھ آ جائے کہ معاملہ خراب ہوا کہاں ہے، اور عمران خان تو ایک معنی نہیں رکھتے بطور نواز شریف، ذرا کلیئر کر دیں۔ یہ بات تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح واضح ہے، لیکن سوال ختم ہو گئے، اگلا مولانا سوال صاحب، آپ اگلا فرمائیں، صاحب یہ فرمائیے گا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم میں جتنی جماعتیں ہیں ہمیں ان سے خوف نہیں ہے، ملک میں نہ تبدیلی آئے گی نہ حکومت جائے گی۔ اس کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے مجھے۔ اور نواز شریف یہ دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں ان کے قائدین ہیں، آصف زرداری اور نواز شریف کی جو کمی ہے وہ کتنی محسوس ہوگی، اور اس حوالے سے آپ اس کو سوچ بچار کی ہے کہ ان کی جو پارٹی ہم ان کی قیادت کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ جس مشکل میں بھی ہیں انشاءاللہ سڑکوں پر عوام میں ہم آپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ نواز شریف نے کہا کہ مجھ سے DGI نے استعفیٰ مانگا تھا، وہی سوال عمران خان سے کیا گیا اگر آپ سے استعفیٰ مانگتے تو آپ کیا کرنا کہ میں تو اسے فارغ کر دیتا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو بھی اس وقت کوئی اس طرح بولڈ اسٹیپ لینا چاہیے تھا؟ میرے خیال میں مجھے چونکہ ان حکومتی امور و معاملات سے نہ تو کوئی وابستگی رہی ہے، انہوں نے جو بات کی ہے جن سے متعلق ہے وہ خود اس کی وضاحت کریں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا سے پہلے دھرنا آپ نے اسلام آباد کے اندر دیا اور آپ کو مختلف قسم کے لالی پاپ دے کے وہاں سے اٹھا دیا گیا، کیا اس طرح کے آپ کو امکانات ہیں؟ ہمارے پلاننگ میں ہے کہ ہم اسلام آباد جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا آپ ادنان ملک صاحب، حکومت جائے گی یا نہیں جائے گی؟ ایک سیکنڈ، تمام اپوزیشن کی اور عوام کی نظریں آپ پر ہیں، تو آپ کے اوپر حکومت کی جانب سے جو ایک کیس بھی نیب میں بنا دیا گیا، کیا آپ نے عمران خان کو کوئی پلاٹ وہ وقت سے پہلے جائیداد کہاں لے کے وہ وقت سے پہلے ہم نے اڑا دیا ہے۔ ادنان ملک صاحب یہ سن، حکومت نومبر میں جا رہی ہے، دسمبر میں جا رہی ہے؟ ایک سیکنڈ جی، ترتیب سے استعفے تو ہمیشہ دیے جاتے ہیں، ادنان ملک غیرت صاحب، مند لوگ استعفے دیتے ہیں اور کمزور لوگوں سے استعفے لیے جاتے ہیں۔ ایک سیکنڈ جی، ادنان مولانا صاحب صاحب ایک ٹرائی اگین۔ مولانا صاحب حکومت نومبر میں جا رہی ہے، دسمبر میں جا رہی ہے؟ آج یہاں پر جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کی جنرل کونسل کا اجلاس تھا، تمام نمائندے آئے ہوئے تھے اور ایک بھرپور عزم کے ساتھ فیصلہ کیا گیا کہ 16 اکتوبر کو جو پہلا جلسہ گوجرانوالہ میں ہوگا اس کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے گی، پبلک میں آگاہی پیدا کی جائے گی اور ایک عوامی قوت کا مظاہرہ ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس ملک کی حفاظت، اس ملک کی معاشی ترقی، اس ملک میں عوام کی خوشحالی، یہ ایک ایسا ہمارا ہدف ہے کہ ان حالات میں جب موجودہ حکومت ناجائز بھی ہو، نااہل اور نالائق بھی ہو اور عوام ایک کرب میں مبتلا ہوں، نہ اسے عوام کی نمائندہ حکومت کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی عوام کی توقعات پر پورا اتر سکی ہے۔ مہنگائی نے عام آدمی اور غریب آدمی کی کمر توڑ دی ہے۔ آج بھی اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کا بہت بڑا مظاہرہ ہے جو کل سے جاری ہے اور آج ان پر تشدد بھی کیا گیا ہے، جس کے ہم بھرپور الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم ان کے مطالبات کی بھرپور حمایت بھی کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اب یہ کاروان چل پڑا ہے، آزادی کا کاروان ہے، ملک میں آئین کی بالادستی کا کاروان ہے، عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت کے قیام کے لیے ایک سفر کا آغاز قومی سطح پر کیا جا رہا ہے، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی اعلیٰ قیادت شریک ہوگی اور متحدہ ہمارے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے، PDM کی طرف سے پورے ملک میں جلسوں، مظاہروں اور عظیم الشان اجتماعات کا ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی 2-3 جلسوں میں
मुल्क के अंदर एक तब्दीली के एहसासात और असरात पैदा हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह इसके लिए हमने भरपूर फैसला किया है और पूरे सूबे की जमात, पूरे मुल्क की जमातें और अवाम इन जलसों की कामयाबी के लिए मुंतज़र है। मौलाना साहब पीडीएम के ये बताइएगा कि आप डे फर्स्ट से पहले दिन से 25 जुलाई से इस पार्लियामेंट के खिलाफ थे कि ये आवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है। आप क्या समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब अपनी 2 तकरीरों के बाद उस हद तक नजरियाती हो चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त आपने सामने को तैयार है? और इसी के साथ दूसरा सवाल ये कि किस हद तक आपको ये मैंडेट दिया है तमाम जमातों ने कि अगर किसी सतह पर इस्तीफे देने का मामला आए तो पीडीएम इसी तरह यूनाइटेड होकर इकट्ठा जाएगा? देखिए, एक तो बुनियादी बात यह है कि ये तासुर बिल्कुल गलत है कि सियासी लोग, पार्लिमानी और जमहूरी लोग वो इदारों से तसादुम की बात करते हैं। इदारों से तसादुम का कोई तसव्वुर नहीं है। हम इदारों के इस्तेहकाम के कायल हैं, लेकिन आइन के तहत दिए हुए दायरे कार के तहत अपने किरदार को महदूद करने की बात करते हैं। लिहाजा अगर कोई इदारा अपने हदूद से तजावुज़ करता है और मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होता है तो ये ख़ुद उनके हल्फ की भी मुखालफत है, उनके अपने इदारे की कमज़ोरी का सबब भी बनता है। और फिर ज़ाहिर है जिसके साथ पाकिस्तान का दिफा वाबस्ता हो वो तो हर शहरी के लिए एक हसास इदारा बन जाता है। तो इस एतबार से जो शिकायतें सामने आई हैं वो शिकायतें जेन्युइन हैं और उसको हमें बाकायदा दलील की बुनियाद पर ठंडे दिल के साथ सोचना चाहिए कि मुल्क कैसे चल सकता है। और जहाँ तक इस्तीफ़ों की बात है, ये हमारे मुत्तफ़िक़ा जो ऑप्शंस हैं उसका हिस्सा है और आने वाले वक्त में इसको इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकेगा। हमें बिल आखिर इन ऐवानों के बारे में एक कतई फैसले की तरफ जाना होगा। मौलाना साहब बतौर पीडीएम के सरबराह के आप पहली बार आज जाती उमराह जा रहे हैं और उनके डेलीगेशन से जो है वो मुलाकात करने जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ हालिया दिनों में 10 जिनसे आपकी मुलाकात है 10 अफराद से उन पर गद्दारी का मुकदमा कायम है। ये मुल्क में क्या हो किसने गद्दारी का केस किया है? थाना शादरा में जो खुद गद्दार हैं, जिनके खिलाफ गद्दारी के फैसले हो चुके हैं और जो अदालतों में पेश होने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसमें 3 जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, जिसमें आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं। इस किस्म के हथकंडे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इंडिया के एजेंट नहीं बनते। जब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के खिलाफ गद्दारी का केस आप करेंगे उसका क्या मैसेज जाएगा? लिहाजा ये कोई मुकदमा नहीं है। हम ऐसे मुकदमात को जूते के नोक पर रखते हैं। हम इनका मुकाबला करेंगे। गद्दार वो हैं जिन्होंने धांधली की है। गद्दार वो हैं जो अवाम के मैंडेट के बगैर कौम पर मुसल्लत हैं। गद्दार वो हैं कि जिसके खिलाफ फैसले आए और फिर अदालती कमीशन तहलील कर दिए गए। लिहाजा इस हवाले से जंग न छेड़ी जाए। हम ऐसे जंग में लड़ने के बड़े आदी हैं और हम मुल्क को इस हद तक नहीं ले जाना चाहते। हमेशा हमें कहा जाता है कि जी आप इंतहा तक न जाएं। हम बिल्कुल इंतहा तक नहीं जा रहे। हम आइन के हुदूद के अंदर जा रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा इदारा भी आइन के हुदूद से आगे न जाए, इंतहा पसंदी की तरफ न जाए। अगर पीपल्स पार्टी ने रास्ते में आपका साथ छोड़ दिया और चौधरी शुजात हुसैन साहब भी आपके पास ना आए, इस तरीके का मुस्तबिल क्या होगा? इस अगर की कोई हैसियत नहीं है। अच्छा मौलाना साहब बताइएगा, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा, जो मौजूदा अस्करी क़यादत है, मैं रिपीट कर देता हूँ, जो मौजूदा अस्करी क़यादत है बतौर पीडीए के सरबराह, आप मौजूदा अस्करी क़यादत के खिलाफ हैं या अदारे के? ये आज क्लियर कर दे ताकि कौम को भी समझ आ जाए कि मामला ख़राब हुआ कहाँ है। और इमरान खान तो एक मायने नहीं रखते बतौर नवाज शरीफ, ज़रा क्लियर कर। ये बात तो जिस तरह आप कह रहे हैं उसी तरह वाज़ेह है, लेकिन सवाल खत्म हो गए। अगला सवाल। ये फरमाइएगा कि इमरान खान ने कहा है कि पीडीएम में जितनी जमातें हैं हमें उनसे खौफ नहीं है, मुल्क में ना तब्दीली आएगी ना हुकूमत जाएगी। उसके पसीने छूटे हुए हैं, आपको पता नहीं है। और नवाज शरीफ, ये दोनों जो बड़ी जमातें हैं उनके कायदीन हैं। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की जो कमी है वो कितनी महसूस होगी और इस हवाले से आप उसको सोच विचार की है कि उनकी जो पार्टी, हम उनकी क़यादत को पैगाम देना चाहते हैं कि आप जिस मुश्किल में भी हैं,
इंशाअल्लाह सड़कों पर आवाम में हम आपकी कमी महसूस नहीं होने देंगे। मौलाना साहब ये बताइएगा कि नवाज शरीफ ने कहा कि मुझसे DGI ISI ने